اگر بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کے نہ ہونے پر احتجاج ہوا تو بھی الیکشن جائز اور قانونی ہوگا۔ سابق وزیر اعظم امریکی سازش کے بیانیے سے خود پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بعض اوقات سیاستدان عوامی حمایت کے لیے ایسا بیانیہ بناتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ترکیہ کی نشریاتی ادارے کو بریفنگ۔ پہلے تنقید اور پھر تعریف۔ نگراں وزیر داخلہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ نواز شریف کو عدالت سے ضمانت نہ ملی تو گرفتار کریں گے۔ ایک ملزم کو جہاز سے گرفتار کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے ہوتی۔ سرفراز بگٹی کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ پھر یو ٹرن لے کر نواز شریف سے متعلق بیان پر وضاحت پیش کر دی۔ کہا بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا۔ نگراں حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ عوام کا ایک بہت بڑا حصہ نواز شریف کو خوش آمدید کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہے۔ وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ نگراں وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا 17 رد عمل سرفراز بگٹی کے بیان پر حد سے تجاوز قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سرفراز بگٹی نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرنا کرے۔ سابق وزیر اعظم نے ایئرپورٹ سے 21 اکتوبر کو کہاں جانا ہے یہ وزیر داخلہ یا وفاق کا نہیں، عوام کا فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف وطن واپسی پر ایئرپورٹ سے کہاں جائیں گے یہ نگراں حکومت کا مسئلہ نہیں۔ فورس و تیاری عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ جس کرسی پہ تھوڑی مدت کے لیے بیٹھے ہیں اسے تاحیات سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں۔ نواز شریف کی نہیں ملک کی فکر کریں۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے نگراں وزیر داخلہ کو کھری کھری سنا دی۔ دوسری جانب نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز لندن سے واپس وطن پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کے بیٹے جنید صفدر سمیت پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد نے استقبال کیا۔ لندن قیام کے دوران مریم نواز کے والد کے ساتھ مل کر سیاسی صورتحال اور وطن واپسی بارے تفصیلی مشاورت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل انکار کے باوجود بیانیے پی ٹی آئی کے ٹرک سے اڈیالہ جلد منتقلی۔ سابق وزیر اعظم کو 15 گاڑیاں 2 بختر بند اور 1 ایمبولینس پر مشتمل اسلام آباد پولیس کے قافلے میں اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ ایک سال میں کورٹ کچہری دیکھ لی، دہشت گردی بنا دیا گیا۔ 39 سالہ سیاسی کیریئر میں ایک پرچہ تک نہیں ہوا تھا۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف کی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ ایک سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ معلوم نہیں برف پگھلی ہے یا نہیں، جو بے گناہ ہے اسے رہائی ملنی چاہیے۔ شفاف انتخابات وقت کی اہم ضرورت اور واحد حل ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ قانون عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے۔ پارلیمنٹ نے قانون سازی کے آئینی اختیار کی خلاف ورزی کر دی۔ پریکٹس پروسیجر قانون کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا گیا۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما نیاز اللہ نیازی کی جانب سے بھی جواب جمع۔
पंजाब भर में आशूबे चश्म के मरीजों में इजाफा रुक न सका। 24 घंटे में 8,851 नए केसेस रिपोर्ट। सुबह भर में कुल केसेस की तादाद 74,220 हो गई। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने आंखों के इंजेक्शन से बनाए जाने के वाक़े की तहकीकात के लिए नई 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन सिक्योरिटी अदारे को जारी। फौज की दहशत गर्दों की मौजूदगी की तलाश और जिला खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कार्रवाई फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुताबिक कार्रवाइयों में सरगर्म थे। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में 3 नहीं 6 मुलजिम मुलविस थे। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलविस मुलजिमान ने एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। एक एनी शाहिद ने बताया कि इसने मुलजिमान का पीछा किया। मुलजिमान सिखों के ही हुलिये में थे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि नजर की गाड़ी को मुलजिमान की एक गाड़ी ने पार्किंग में रोका और अचानक नमोदार 2 निकाबपोश मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान ने 50 गोलियां बरसाई, जिनमें से 34 हरदीप सिंह नजर को लगी। और टीम में कोई लड़ाई नहीं है, कोशिश है अच्छा खेलें और वर्ल्ड कप जीत कर लाएं। इन्हीं खिलाड़ियों ने टीम को नंबर 1 बनाया और यही खिलाड़ी मैचेस भी जितवाएंगे। कप्तान खिलाड़ियों के दफा में बोल पड़े। बाबर आजम ने भारत जाने से कबल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इवेंट के लिए भरपूर तैयारियां हैं, कोशिश करेंगे कि एशिया कप की गलतियां वर्ल्ड कप में ना दोहराई जाएं। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। ब्रिटेन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिटेन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबी अमल में इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप की मुखालफत या हमायत नहीं की जाएगी। यकीन दिलाता हूँ कि इंतखाबी अमल साफ, शफाफ और आज़ादाना होगा। तुर्किया के नशरियाती इदारे TRT को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम जल्द इंतखाबी अमल में दाखिल होने जा रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ कि इंतखाबी अमल साफ, शफाफ और आज़ादाना होगा। जी बिल्कुल, इस अमल में इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप की मुखालफत या हमायत नहीं की जाएगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। हर सियासी जमात के पुरअमन एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ताहम तशद्दुद आमीज़ मुज़ाहरों की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इंतखाबी हल्का बंदियाँ आईनी ज़रूरत है। हमने कानून और आइन के मुताबिक अमल करना है। इंतखाबी हल्का बंदियों पर एतराज़ साबिक़ पार्लियामेंट में कानून साजी के वक्त किया जा सकता है। निगरान वज़ारत इत्तलात ने कहा कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। निगरान वज़ीर आज़म के हालिया इंटरव्यू में एक हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म के हालिया इंटरव्यू पर वज़ारत इत्तलात ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और मरवजा इंतखाबी कवानीन के तहत तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक हासिल है। निगरान वज़ीर आज़म के एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में रिमार्क्स को गलत रिपोर्ट किया गया।
वजारत इत्तलात ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म तजवीज़ कर रहे थे कि इंतखाबात में हिस्सा लेना एक हक है, लेकिन जराइम पर सजा कानूनी तौर पर जायज़ है। ये अमर अफसोसनाक है। इंटरव्यू के एक हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये गलत तासुर दिया गया है। किसी मखसूस शख्स की आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको बताएं कि हाल ही में दिए गए बयान में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बख्शी ने कहा था कि नवाज शरीफ को अदालत से जमानत ना मिली तो गिरफ्तार करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना ही चाहेंगे। एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बख्शी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर दिए जाने वाले बयान से मुतालिक वजाहत पेश कर दी। सरफराज बख्शी की जानिब से जारी वजाहत बयान में कहा गया है कि बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात खुश आइंद अमल है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम का एक बड़ा हिस्सा नवाज शरीफ को खुश आमदीद करने की तैयारियों में मशगूल है और वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि निगरान वज़ीर दाखिला बयान देने से कबल साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की जानिब से बयान को हद से तजावुज करार देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरफराज बुख्ती साहब बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खुमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगतना है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। मजीद तफसीलात के मुताबिक कायद नून लीग पर अल्लाह ताला की रहमत और नीचे अवाम की फोर्स है। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि सरफराज बुख्ती नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करे। कायद नून लीग जेलों और फोर्स का सामना कर चुके हैं। उनकी फिक्र छोड़ें, अपने काम पे तवज्जो दे जनाब। उनका मजीद कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट से 21 अक्टूबर को कहाँ जाना है ये वज़ीर दाखिला या विफाक का फैसला नहीं होगा बल्कि अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। और दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर एयरपोर्ट से कहाँ जाएंगे ये निगरान हुकूमत का मसला नहीं है। निगरान विभाग वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती के बयान पर रद्द अमल देते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि सरफराज बुख्ती साहब नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये आपका मसला तो नहीं और ना ही आपका फैसला होगा। फोर्स और तैयारी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने कहा कि कायद नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये नवाज शरीफ और आवाम का फैसला होगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम है जिन पर झूठे केस बनाकर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर नाहक सजा दी गई। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि जिस कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं इसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। नवाज शरीफ की नहीं मुल्क की फिक्र करें। 2017 से लेकर अब तक इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे और साजिश से अवाम के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई है। हाल ही में अपने एक बयान में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा था कि नवाज शरीफ को अदालत से जमानत ना मिले तो गिरफ्तार करेंगे। एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज लंदन से लाहौर वापस पहुंच गए। मरियम नवाज इत्तेहाद एयरवेज की परवाज 243 से लंदन बरास्ता अबुजेबी लाहौर पहुंची हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर उनके बेटे जुनेद सफ्दर समेत पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। लंदन क्याम के दौरान मरियम नवाज शरीफ ने वालिद के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल और उनकी वतन वापसी बारे तफसीली मुशावरत की।
اور اہم خبر بلیٹن کا حصہ بنائیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے آنکھوں کے انجیکشن سے بہنائے جانے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے نئی 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کو تحقیقاتی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کمیٹی کے شریک کنوینر ہوں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری، سیکریٹری قانون، اسپیشل سیکریٹری صحت کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اسد اسلم کو بھی تحقیقاتی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی واقعے کے جامع معائنہ کرے گی۔ کمیٹی آنکھوں کی سرجری میں اووسٹن کے استعمال کے طریقہ کار پر رپورٹ مرتب کرے گی۔ اووسٹن انجیکشن کی مینوفیکچرنگ، ڈسٹریبیوشن، سپلائنگ کے تمام مراحل کی ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ کمیٹی اووسٹن کی مارکیٹ تک رسائی میں خامیوں پر رپورٹ تیار کرے گی، جبکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے پلان بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات کمیٹی کو تمام واقعے کی جامع رپورٹ 7 روز کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف نے اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی نہ کرنے کا عدالت کے سامنے بیان دے دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے بیان میں کہا کہ اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ میں اپنے وکلا سے کہوں گا کہ اڈیالہ جیل میں منتقلی کی درخواست واپس لے لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ 1 سال میں کورٹ کچہری دیکھ لی ہے، دہشت گرد بھی بنا دیا گیا۔ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ 40 سال سیاست کی 39 سال میرے خلاف ایک پرچہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں برف پگھلی ہے یا نہیں، جو بے گناہ ہیں اسے رہائی ملنی چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ شفاف انتخابات وقت کی ضرورت ہیں اور واحد حل ہیں۔ اگر شفاف انتخابات نہ ہوئے تو ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا اور عوام کا موجودہ جمہوری نظام سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ سائفر کیس کی سماعت کے لیے شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑی لگا کر جوڈیشل کمپلیکس پہنچایا گیا تھا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف جنگلات اراضی کیس کی فائل دوبارہ کھل گئی ہے۔ نیب نے اسلام آباد سمیت 15 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے 25 ستمبر تک پرویز الہی سمیت 14 افراد کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی خرید و فروخت کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ نیب کال اپ نوٹس کے مطابق محکمہ جنگلات کی اراضی ایک نجی ٹاؤن کو منتقل کرنے کے کیس میں پرویز الہی پھر شکنجے میں آ گئے ہیں۔ راولپنڈی کے نجی ٹاؤن مالکان اور لینڈ ریونیو افسران سمیت 14 افراد کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نیب نے کہا کہ پرویز الہی پر راولپنڈی کے قریب تخت پری جنگل کی اراضی غیر قانونی طور پر نجی ٹاؤن کو منتقل کرنے کا الزام ہے۔ نیب نے ان افسران کے احساسات کی تفصیلات ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، لاہور، کراچی، گوادر، ملتان، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور سے طلب کی ہے۔ اس کے علاوہ اٹک، شیخوپورہ، جہلم، میاں والی، پاک پتن، فیصل آباد اور ڈی سی گجرانوالہ سے بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ ان افسران میں جاوید مجید، غلام محمد سکندر، جہانگیر غوری، جمیل احمد، عرفان الہی، سید جمال مصطفیٰ، آصف قریشی، انوار الحق، شفقت علی مرزا، تصور حسین، محمد نواز، خالد مسعود اور عبدالظہور شامل ہیں۔ سائفر کیس سے متعلق خبر آپ کو دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا بیرسٹر سلمان صفدر اور عمر نیازی جبکہ ایف آئی اے کی ٹیم بھی سماعت میں حاضر رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کے بعد شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئی۔ اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے بعد جج ابوالحسنات ذوالقرنین جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تھے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے عدالتی عملے نے شاہ محمود قریشی کی حاضری لگوا کر انہیں جوڈیشل کمپلیکس سے روانہ کر دیا۔ عدالتی عملے کی جانب سے کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سماعت کی تاریخ ہی شاہ محمود قریشی کی اگلی تاریخ ہے۔ دونوں افراد کی 10 اکتوبر اگلی تاریخ ہے۔
नाज़रीन, खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल दस्तावेज़ात पेश न करने वाले वकील पर 2000 का जुर्माना आयद कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जुर्माना इनकम टैक्स केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाज़ेह किया कि हम जरा ओल्ड फैशन जजेस हैं, मुकम्मल दस्तावेज़ात देखेंगे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि आपके साथ रेवेन्यू का कोई अफसर नहीं आया। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि जी मेरे साथ कोई नहीं आया। वकील दरखास्त गुजार के मौकिफ पर चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि हमने कहा है कि इनकम टैक्स का केस तब तक चल सकता है जब तक मुतल्लिका डिपार्टमेंट का बंदा साथ हो। अदालत को मुआवनत मिलती नहीं है और कहते हैं कि करोड़ों रुपए मालियत के केस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हुक्म की तकमील हो सके। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि आप कोशिश करें, अगर तमील ना हो तो फिर देखें क्या होता है, इसी बात पर ना क्या करें। इसका मतलब यह है कि आपके पास ऑप्शन है कि तमील नहीं की जाएगी। दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप बताएं कितना जुर्माना करें, आपकी मर्जी के मुताबिक कर देते हैं। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि 1000 जुर्माना कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जैसे सीनियर वकील से ये उम्मीद तो ना थी, चलें 2000 जुर्माना कर देते हैं। जुर्माना अपनी मर्जी के चैरिटी फंड में जमा करवा कर रसीद अदालत में जमा करवाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के मामले पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नियाजुल्ला नियाजी ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अपना जवाब जमा करा दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, कानून अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। पार्लियामेंट ने कानून साजी के आईन इख्तियार की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस इख्तियारात पर तजावुज अदलिया की आज़ादी से मुतालिका है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अपने जवाब में आबिद जुबैरी ने कहा कि प्रैक्टिस प्रोसीजरल कानून के खिलाफ दरखास्त से काबिल समात है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि प्रैक्टिस प्रोसीजरल कानून को गैर आईनी गैर कानून करार देकर कालदम करार दिया जाए। पीटीआई रहनुमा नियाजुल्ला नियाजी ने अपने जवाब में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आईनी मैंडेट से महरूम किया गया। प्रैक्टिस प्रोसीजरल अदलिया के मामलात पर तजावीज़ है। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184/3 में अपील का हक सिर्फ आईनी तरमीम से दिया जा सकता है। आइन की तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। जब प्रैक्टिस प्रोसीजरल कानून बना, पार्लियामेंट के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। वहीं दूसरी जानिब लंदन में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। मुलाकात में PIA की परवासों की बहाली पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया और ताल्लुकात को मजबूत बनाने में 16 लाख बरतानवी पाकिस्तानी बाशिंदों के तामीरी किरदार को बेहद सराहा। मुलाकात में बरतानिया की जानिब से अफगान शहरियों की मेजबानी और आबादकारी के अमल में पाकिस्तान की हिमायत को भी सराहा गया। इस मौका पर निगरान वज़ीर आज़म ने बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। और खबर आपको दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की तलाश पर जिला खैबर के इलाके जिसमें फायरिंग के तबादले के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द कमांडर किफायत तौर अदनान समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की दरमियानी शब दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला मिलने पर किया गया। हलाक दहशत गर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशत गर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में सरगर्म थे। ISPR का मजीद कहना था कि दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स इस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
اور ناظرین اب کچھ بار ڈالر کے احوال کی تو انٹر بینک میں آج ڈالر مزید سستا ہونے کے بعد 290 روپے سے نیچے آ گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 16 پیسے سستا ہو کر 289 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر اپنی بلند ترین سطح سے 17 روپے 40 پیسے سستا ہوا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 290 روپے 86 پیسے کا تھا۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے سستا ہونے کے بعد 292 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران ملا جلا رجحان منظر عام پر ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا سو انڈیکس 27 پوائنٹس کم ہو کر 46,366 پر آ چکا ہے۔ گزشتہ روز سو انڈیکس 46,393 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ اور دوسری جانب لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے کہا کہ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی خوشائن بات ہے۔ بجلی اور گیس چوروں کے خلاف آپریشن کی حمایت کرتے ہیں۔ آئندہ عام انتخابات سے قبل تمام سیاسی جماعتیں چارٹر آف اکانومی پر دستخط کریں اور کالا باغ عمران کے حوالے سے ایک پیج پر آ جائے۔ صنعتوں کا پہیہ چلنے کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں علی فاروق سے، جو اس وقت کاشف انور کے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہے۔ جی علی، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی میں اس ٹائم بالکل کھڑا ہوں لاہور چیمبر آف کامرس میں، جہاں کاشف انور جو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں مسلسل اور لیکن سست روی سے کمی ضرور آتی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بجلی چوروں گیس چوروں کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کاشف بھائی، ایک تو مہربانی ٹائم دیا آپ نے، جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بتائیے گا۔ دیکھیں بہت خوش آئندہ ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا ہے اور ہم اپنی اسمگلنگ کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر اپنے روزگار کو یہاں پر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی انڈسٹری کو فلرش کرنا چاہتے ہیں، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ جو ایشوز ہیں ان کا جو روٹ کاز ہے وہ ڈیویلویشن ہے۔ اگر ہمارا روپیہ اسٹرانگ، کیونکہ ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں، ہم ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری نہیں ہیں، اور وہ ہم تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا انپوٹ بجلی گیس سستی نہیں ہوگی، جب تک ہم رینیویبل انرجی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو روپے کا مستحکم ہونا بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ کے ملک میں انفلیشن کم ہوگی، اس سے آپ کے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا، اس سے آپ کے ملک کے اندر جب فیکٹریاں چلیں گی تو آپ کا روزگار بھی پیدا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، گوہر جہاز صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ڈالر کو ہم کم کی سطح پہ نیچے سے نیچے لا رہے ہیں، 260 تک کہا تھا، لیکن آپ کا بینگ این اکانومسٹ آپ کا تھا کہ 150 تک کم از کم آنا چاہیے۔ کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ملک کے موجودہ حالات کو بھی دیکھنا ہے، اور انہوں نے بالکل 260 تک کا کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 240 سے 260 کے درمیان انشاءاللہ یہ آ جائے گی ویلیو روپے کی، جو پیرٹی ہے ڈالر کے ساتھ، اور ہماری ایکچوئل ویلیو جو ہونی چاہیے وہ 250 روپے کے قریب ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا روپیہ 250 کے قریب آ جاتا ہے ڈالر کے اگینسٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت بہتری آئے گی اور انفلیشن بہت زیادہ کم ہو جائے گی، اور انفلیشن کے کم ہونے سے ہی جو آپ کے باقی مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں گے۔ سر انرجی کرائسس بڑے ہیں، اور سردیوں میں بھی کافی صورتحال گمبھیر ہو رہی ہے گیس کے حوالے سے، اور ان کا ٹیرف بھی بڑھ رہا ہے۔ اب اس ٹائم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو پھر بڑھے گا آگے، کیسے کمپیٹ کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ؟ دیکھیں ہمیں اپنے چونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، ہمیں پرائرٹی لسٹ بنانی ہے، ہم نے کس مسئلے کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں تو دوسرے مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں، اسمگلنگ، ڈیویلویشن، آپ کا فلائٹ آف ڈالرز، آپ کا پھر باقی جو ایشوز ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہیں۔ ہم نے کوئی واٹر ریزروائرز نہیں بنائے، ڈیمز کی طرف نہیں گئے، سولر پہ ہم نہیں جا رہے۔ تو دیکھیں ہم ایک آدھے سال کے اندر ان ایشوز سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن شارٹ ٹرم ہم اپنے مسائل کو حل ضرور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم بار بار لاہور چیمبر یہ کہہ رہا ہے کہ چارٹر آف اکانومی کو سائن کرائیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، کہ جب اب اگلی گورنمنٹ نے شفٹ ہونا ہے
تو انہیں بھی یہ پتا ہو کہ اگلا 20 سے 25 سال تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کیا پرائرٹیز کو اڈاپٹ کرنا ہے اور ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے. آخری کوشچن یہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی اس کو بنائے چارٹر آف اکانومی پہ دستخط ہوں, آپ سمجھتے ہیں سیاستدانوں سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے الیکشن سے قبل تاکہ ایک چارٹر آف اس پہ سائن ہو جائے؟ لیکن میں تو چارٹر آف اکانومی کے ساتھ ساتھ کالا باغ ڈیم کی بھی بات کروں گا کہ اب یہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں اس پیسے کو بچانا ہے, اس پانی کو بچانا ہے, اس وائٹ گولڈ کو بچانا ہے, کیونکہ اگر ہم اب بھی اپنی ذاتیات سے نہیں نکلیں گے اور پاکستان کا نہیں سوچیں گے تو پھر کوئی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا. ہم نے خود ہی اٹھنا ہے, ہمیں اپنی ذاتی مفادات, ذاتی سیاست کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا, پاکستان کا سوچنا ہوگا. ہم سوچیں گے تو ہم پاکستانی بنیں گے, ورنہ پھر ہمیں بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا. بہت شکریہ. گفتگو سنی کاشف انور صاحب کی, انہوں نے واضح کیا ہے کہ جی چارٹر آف اکانومی پر دستخط ہونے چاہیے, اور ساتھ ہی انہوں نے کالا باغ ڈیم کی بھی بات کی ہے کہ کالا باغ ڈیم بنانا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. ناظرین, خبر یہ ہے کہ شہر اقتدار کی مایوس فضا میں عرصے بعد رونقیں بحال ہونے لگی. سب سے بڑے تجارتی مرکز سینٹورس ٹی مال اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر سایہ شہداء اسلام آباد پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میوزیکل ایونٹ کا انعقاد کیا گیا, جس میں آئی جی پولیس اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان, وفاقی پولیس کے اعلیٰ افسران اور اہلکاران, بزنس اور صحافتی کمیونٹی نے فیملیز کے ہمراہ خصوصی شرکت کی. شہداء پولیس کے میوزیکل ایونٹ میں سروں کے شہنشاہ استاد راحت فتح علی خان اور شہرۂ آفاق گلوکارہ آئمہ بیگ نے اپنے گانوں سے حاضرین کے دل جیت لیے. کوہی نور نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا, احوال بتا رہی ہیں اسلام آباد سے ہمارے سینئر رپورٹر سید عمر گردیزی. جی عمر, بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں یہاں اسلام آباد سپورٹ کمپلیکس میں, جہاں چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور سینٹورس ٹی مال کی جانب سے ایک میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا, جو کہ شہدائے اسلام آباد کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے, انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ آج یہ شام سجائی گئی ہے. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آج اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس موقع پہ آج جو خاص گلوکاروں کو بلایا گیا تھا, ان میں گلوکار آئمہ بیگ جو کہ شہرت یافتہ گلوکارہ ہیں پاکستان کا, پوری دنیا میں انہوں نے نام روشن کیا. اس کے علاوہ استاد راحت فتح علی خان آج کے جو مین سنگر ہیں اس ایونٹ کے, انہیں خصوصی طور پہ یہاں پہ مدعو کیا گیا اور جنہوں نے یہاں پہ اپنے سریلی دھنوں سے شرکاء کو محظوظ کیا. اور ہم لوگوں سے بھی مزید جانتے ہیں کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے, ان کے آج کے ایونٹ کے بارے میں کیا تاثرات. دیکھیے, ہمیں اگر تو نیشن کے طور پر ابھرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا, اور آج کا جو ایونٹ ہے وہ شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھنے کا دن ہے. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ میسج ہے, پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے اس میں اس طرح کے ایونٹس ہونا ضروری ہیں. ایک تو ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, خدمات سارے انجام دیتے ہیں, اگر آپ ان کی خدمات کا اعتراف کریں گے تو باقی دیکھنے والوں میں ایک کرج پیدا ہوگی. اور آج کے ایونٹ سے ویسے بھی ایک گھٹن ذرا ماحول تھا, انٹرٹینمنٹ ہوئی ہے, فیملیز نے بڑا انجوائے کیا. مجھے تو سچ بتاؤں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کافی دنوں سے بہت گرمی تھی, یہ سلسلہ رکا ہوا تھا, لیکن آج بارش بھی ہوئی ہے تو موسم بہت زیادہ اچھا ہے. لیکن اس طرح کے ایونٹس کے لیے پھر کوئی ٹائم بھی نہ نکالے, یہ بھی کیسی بات ہے. تو ہم ٹائم بھی نکالیں گے. میں تو کہتی ہوں اس طرح ایونٹس ہر جگہ ہونے چاہیے. جی میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں, اینڈ آئی فیل دیٹ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. دیکھیے وہ لوگ وہ لوگ ہماری اتنی اچھی پروٹیکشن کرتے ہیں, اینڈ لائک دیر آلویز آن دا گو. تو آئی تھنک ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. سر جی بہت اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں ہر قسم کی شہداء کی فیملیز آئی ہے, لوگوں کے ساتھ ملتی ہے, لوگوں کو دیکھتی ہے, اور ہمارے بھی انشاءاللہ یہ ارادہ ہے, لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں نا. مطلب انشاءاللہ آگے ہماری بھی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم آئے ہیں نا گھر بار چھوڑ کے, ابھی میں پشاور سے آ کے ادھر کھڑا ہونا ڈیوٹی کرتے ہیں, تو اس فیملی سب کچھ چھوڑ کے ادھر آتے ہیں, نوکری کرتے ہیں. انشاءاللہ جو بھی ہمارے ملک کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ. جی اس طرح کے ایونٹس اسلام آباد میں ہونے چاہیے. جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں, معاشی افراتفری چل رہی ہے, ہر بندہ ٹینشن کے ماحول میں ہے, تو بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ اچھا قدم ہے کہ لوگوں کو ٹینشن زدہ ماحول سے
निकालने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। बाकी शोहदा के नाम जो है वो दुआए खैर होनी चाहिए सॉन्ग्स के साथ, तो आप आवाम को महसूस कर सकते हैं, शोहदा की फैमिली के दुख को कम नहीं कर सकते। अरेंजमेंट हुई है, ये काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट थी। शुदा की फैमिली यहाँ आई हुई है और उनको आपस में गैदरिंग देख के उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं काफ़ी हद तक, और अच्छी परफॉर्मेंस हमारे सामने पेश की जा रही है। और ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस और पुलिस का इतना अच्छा नज़्म ज़ब्त, ये एक नया हमें एक नई लुक नज़र आई है, नई चेंज नज़र आई है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये इवेंट शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के अलावा इस्लामाबादियंस जितने भी थे उनकी एक तफरीह का एक जरिया बना। बड़ा अरसा हो गया था कि इस इस्लामाबाद के अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई थी। आज ये एक्टिविटी हुई। आप देख सकते हैं कि जो मेरे अकब में और फ्रंट पे हर साइड पे इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो निकले हैं किसी एक्टिविटी की खातिर, क्योंकि ये एक तो महंगाई का दौर चल रहा है, उसकी वजह से फिर सियासी अदम इस्तेकाम और लोग बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा था। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा यहाँ के जो शुरका थे आज की ये खूबसूरत शाम, यहाँ पे आए हुए लोगों का यही कहना था कि बहुत अरसे से इस्लामाबाद उदास था महंगाई की वजह से, जो इस वक्त जो मौजूदा माशी और सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से, तो काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद को एक ऐसी फजा चाहिए थी, एक ऐसा माहौल चाहिए था ताकि इस्लामाबाद के जो ज़हन है वो डाइवर्ट हो, कन्वर्ट हो सके, किसी और तरफ डाइवर्ट हो सके। आपको बता दें कि यहाँ पे जो शुदाए इस्लामाबाद पुलिस है उनकी फैमिलीज यहाँ पे मौजूद है। IG पुलिस इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासर खान यहाँ पे इस इवेंट में आए। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इस वक्त यहाँ पे अपनी फैमिलीज के हमरा मौजूद है। कैमरामैन सरदार फैजान के साथ सैयद उमर गर्जदी, कोहिनूर न्यूज़। तफसीलात आपने जानी और अब आपको बताएं कि रावंड में न्यू सब्जी मंडी के करीब डकैती की वारदात। नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू खाद डीलर से 4 लाख रुपए लूट कर ले जाने में कामयाब हो गया। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को जख्मी कर दिया। जख्मी दुकानदार को तिबी इमदाद के लिए इनके अस्पताल रायबंड मुंतकिल कर दिया गया। खबर आपको दें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स ने अस्पतालों की खसूसी इंस्पेक्शंस की हिदायत कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मरीजों को ऑस्टिन इंजेक्शन से आंखों से मुबैना इन्फेक्शन के तनाज़ुर में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर ने एक हंगामी इजलास में PIC की सीनियर इंतजामिया के अस्पतालों की खसूसी इंस्पेक्शन के लिए हदायत की हैं जहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए हैं। बोर्ड के 85वें इजलास की सदारत चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद बिलाल खान ने की। कमिश्नर को दोनों अबूरी वज़रा से प्रोफेसर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर की तरफ से बुलाए जाने वाले इजलास की कार्रवाई के बारे में आगाह किया गया। बोर्ड को बताया गया कि कमेटी में होने वाली इजलास की कार्रवाई के बारे में आगाह किया कि बोर्ड को बताया कमेटी में होने वाली बातचीत के मुताबिक आंखों के मरीजों के लिए दवाओं की दरामदार कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग से मुतल्लक अमूर की तहकीकात महकमा सेहत की तश्कील करदा कमेटी करेगी, जबकि PIC इंजेक्शन के इंतजामिया के सिलसिले में अस्पतालों की तरीकाकार की तहकीकात करेगी। गौर खोज के बाद बोर्ड ने कमीशन के सीनियर इंतजामिया को हदायत की वो किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयारी करें, खासतौर पर इन अस्पतालों का खसूसी मुआयना करें जहाँ इन्फेक्शन हुई है। बोर्ड ने दूसरी इलाजगाहों की इंस्पेक्शन, खसूसन इन्फेक्शन से बचाव और कंट्रोल के इंतजाम, तिबी माहिरीन की काबिलियत और ऑपरेशन थिएटर की सफाई की भी हदायत की है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदनान, आप तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और खबर है कि सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए सदर आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन लाहौर डिवीजन चौधरी मुख्तार गुजर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते हुए मियां बशारत ने कहा कि हुकूमत ने मुलाजमीन के मुतालबात न माने तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज का ये प्रोटेस्ट जो सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से तमाम मुलाजिम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इकट्ठे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जो नाजायज हम पर कटौतियाँ की जा रही हैं लीव इनकैशमेंट के सिलसिले में, ग्रेजुएटी के सिलसिले में और पेंशन के सिलसिले में, उसके नोटिफिकेशन फिल फॉर वापस किए जाए और
जितनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है, आप सबको पता है कि उस महंगाई के हिसाब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पर बढ़ाया जाए, और अगर ये चीजें गवर्नमेंट ने इस पर नोटिस ना लिया जाए तो इसका दायरा कार मजीद बढ़ जाएगा और धरनों तक चला जाएगा। और इसकी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब की हफ्तावार कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन इलामा मोहम्मद यूसुफ अवान की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कारकुनों के घरों में विजिट शेड्यूल किए गए। इजलास में कमेटी मेंबर्स नसीम सहोत्रा, नादिया शाह और बशारत अली भी शरीक हुए। पंजाब पुलिस को शाल और शहरी परेशान। लाहौर के इलाका लारियटा में जराइम पेशा अनासर मुतहरिक हो गए। कहीं जाली मोबाइल ऑयल के फिलिंग की गई और कहीं जेब तराशी तो कहीं नौसरबाजी की वारदातें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मर्द व खवातीन की जानिब से मुनशियात के खुलेआम फरोख्त जारी है। मुतालिका पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों ने CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी से SHO की तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। तो दूसरी जानिब सराय के मुताबिक मुतल्लिका पुलिस ने 2 लाख रुपए मंथली लेकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने वाले नौसरबाजों को खुली छुट्टी दे दी है, जबकि नौसरबाजी करने की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। वासा रेफरेंडम में मशल यूनियन के खिलाफ वोट डालना मासूर JPO खुरम अब्बास को महंगा पड़ गया। मशल यूनियन के अमजद गुज्जर ने मासूर वासा मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक वासा इचराज सब डिवीजन में मासूर मुलाजिम पर ड्यूटी के दौरान सब इंजीनियर अली हमजा की मौजूदगी में तशद्दुद किया गया। मुतासरा ट्यूबवेल ऑपरेटर ने एक्सियन को तहरीरी दरखास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अमजद गुज्जर ने पूल यूनियन को वोट डालने की पादाश में मुझे धमकियां दी हैं और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। दरख्वास्त के मतन में मजीद कहा गया है कि रेफरेंडम में मुखालिफ यूनियन को वोट डालने की सजा दी जा रही है। जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल-खिदमत के तहत अल-खिदमत स्प्रे मुहिम अल-खिदमत के तहत कराची भर में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ टाउन्स में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम शुरू कर दी गई है। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची के हर इलाके में स्प्रे के लिए गाड़ियां भेजी गई। इस साल भी 10 दिन तक रोजाना की बुनियाद पर स्प्रे मुहिम चलाएंगे। शहर में मच्छरों की बहुतायत है, अस्पतालों में गुंजाइश ही नहीं होती। उन्होंने कहा कि सेहत का बजट रखा जाता है मगर कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं होता। हमने ये नहीं देखेंगे कि कौन सी जमात का इलाका है, हम हर डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि कब्रिस्तान का बहरान है, हमारी मैयत गाड़ियां लोगों की खिदमत के लिए हैं। मीडिया पर सिर्फ बयानबाजी नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से डिस्ट्रिक्ट सदर पीपल्स पार्टी साहिवाल मोहम्मद सकी चौधरी की मुलाकात हुई। टिकट होल्डर PP 197 चौधरी सरमद शफकत और सुरखाब सिकंदर जकी भी मुलाकात के मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर औक़ाफ़ मज़हबी अमूर पंजाब ने कुतुब सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक सैर रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश का इनेकाद महकमा औक़ाफ़ मज़हबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम अल-हमरा आर्ट गैलरी में किया गया। सेक्रेटरी औक़ाफ़ से ताहिर रज़ा बुखारी, DG औक़ाफ़ आसिफ फ़ारूक अली, उलमाए कराम समेत दीगर दीनी शख्सियात ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि सहरोज़ा नुमाइश महकमा औक़ाफ़ पंजाब की जानिब से तकरीबात ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तसलसल है। क़ारीन के लिए सीरत तैयबा, इस्लामियात, पाकिस्तानियात और इकबालियात पर मुश्तमिल कतब का वसी ज़ख़ीरा एक जगह पर दस्तयाब कर दिया गया है। ऐसी नुमाइशें दीनी लिटरेचर के मुताले में कमी का अज़ाला करने में मुआवन साबित हो सकती हैं।
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से कराची समेत सिंध भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। रेंजर्स की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर कार्रवाई हुई। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची से राजा बलूच की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से कराची समेत सिंध भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर वाक़ हब चेक पोस्ट पर कार्रवाइयां की हैं। कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 90 पैकेट इंडियन गुटखा, 150 पैकेट इंडियन नस्वार, 37,233 किलोग्राम मावा, 2 अदद मोटरसाइकिलें और 1 अदद बस भी कब्जे में ले ली गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान स्मगल शुदा अशिया बस के टायरों और खुफिया खानों में छुपा कर लाते थे। अशिया कोयटा से कराची स्मगल की जाती थी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जाती थी। गिरफ्तार मुल्जिमान को बिमा बरामद शुदा सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और कस्टम हुकाम की जानिब से स्मगलिंग के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। कैमरा यूईटी लाहौर और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जर्मनी के माबैन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहिदे के मुताबिक यूईटी ने अपने तलबा के कैरियर के मफाद में जर्मनी यूनिवर्सिटी के साथ उनकी स्कीम पाकिस्तानी तलबा की प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ताउन बैचलर्स प्रोग्राम्स के तहत प्रोग्रामों के लिए इंदराज करेगी। जबकि जर्मन यूनिवर्सिटी हर साल यूईटी के 40 तलबा को अपने बैचलर प्रोग्राम्स में इंजीनियरिंग स्टडी, डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस एंड इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, माइक्रोट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स फीस साल ज्यादा से ज्यादा 10 अहले तलबा को हर प्रोग्राम में दाखिला दिया जाएगा। ये मुआहिदा 3 साल की मुद्दत के लिए कार आमद रहेगा और इसी मुद्दत के लिए बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल। वाइस चांसलर यूईटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान और सदर जर्मन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट ने रजिस्ट्रार मोहम्मद आसिफ, डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस डॉक्टर मोहम्मद शफीक और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शुएब की मौजूदगी में मुआहिदे के कागजात पर दस्तखत कर दिए। नाज़रीन, खबर यह है कि लाहौर में कोहिनूर न्यूज की निशानदही पर एमसीएल की जगह पर गैर कानूनी गैस रिफिलिंग पॉइंट के खिलाफ एक्शन लिया गया। असल इंतजामिया की हिदायत पर सिविल डिफेंस ने कार्रवाई करते हुए मशीनरी और सिलेंडर्स को जब्त कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लाहौर से हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सूबाई दारुल हुकूमत में लाहौर जो है कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। कोहिनूर न्यूज की शुरू से ही ये काविश रही है, रीत रही है कि वो अवाम को फायदे आमा के लिए जो है वो खबर लगाए और उस पर जो है एक्शन करवाए। इसी तरह से हमने इससे पहले जो है निशानदेहियां की थी, उस पर भी एक्शन किया गया है। आपको बताते चले लाहौर के दिल लक्ष्मी चौक पर जो है एचसीएल की जगह पर गैर कानूनी पॉइंट्स पर जो है वो खुलेआम जो है गैर कानूनी एक्टिविटी जारी थी, जिसकी बाकायदा तौर पर निशानदेही करते हुए एसी सिटी और डीसी लाहौर राफिया हैदर को आगाह किया गया। जब डीसी लाहौर राफिया हैदर को आगाह किया गया तो उन्होंने सिविल डिफेंस अफसर जो इरफान मलिक है उनको इस वाले से आगाह किया और उन तक कार्रवाई करने की हिदायत की। आपको बताते चले कार्रवाई के नतीजे में जो है लक्ष्मी चौक को इस वाले से पॉइंट के खिलाफ कार्रवाइयां की गई है और हजारों किलो गैस जो है वो जो सिलेंडर में भरी हुई थी वो भी जब्त कर ली गई है और 10 से ज्यादा सिलेंडर जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। जबकि कार्रवाई करते हुए उस एमसीएल की जगह पर आप देखिए सरकारी जमीन पर किसी भी किस्म का गैर कानूनी कारोबार करने की किसी को भी इजाजत नहीं होती। सरकार की जगह पर इस तरह का काम हो रहा था, इसकी निशानदेही करते हुए उसे बाकायदा तौर पर सील करवाया गया है। उसके बाद जो है सील करवाने के बाद मुतल्ला जो उधर ये कारोबार में मुलविस जो उदार थे और जो मालकान थे उनके खिलाफ भी इस तगासे का अमल जारी है। और जबकि इस वक्त भी ग्वाल मंडी थाना ग्वाल मंडी की हदूद में कार्रवाई करते हुए थाना ग्वाल मंडी में जो है उनके खिलाफ एफआईआर का इंदराज भी करवाया जा रहा है और मजीद इस हवाले से कानूनी कार्रवाई भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद, आप अपडेट कर रहे थे। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के सरपरस्त आला कायद मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी की
प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मरकजी डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म काकर साहब दुनिया को मुतासिर कर चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब तवाज़ुन व इत्तदाल की बेहतरीन मिसाल है। इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ को JUI मरकजी कदर से देखती है। रोज़मर्रा के अमवार को निपटाने की तरह इलेक्शन को डील करना चाहिए। इलेक्शन को स्पेशल तरबियत करना हमारे कल्चर से बाहर हो जाता है। असल मसला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की आमद है। सख्त सर्दी में वोट डालना आसान नहीं। अगर फादर चीफ जस्टिस के सामने पेश होने वाले लोग 90 दिन का राग अलापेंगे तो मौजूदा हुकूमत इंतखाबात की तारीख 90 रोज के बाद की है। मार्च की आखिर में पहाड़ों से बर्फ पिघलती है। पहले ही आईनी हदूद से बाहर जा चुके हैं। 110 दिन नहीं 140 ही सही। ये वक्त इख्तिलाफियात की बहाली का है। निगरान हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि PIA स्टील मिल की निजकारी की जाए। मैशियत बेहतरीन के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। खाली पेट वोटर जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं करता। इकोनॉमिक लेवल को पोस्ट करने की जरूरत है। चीन ने तालिबान के करीब आकर तजारत को बढ़ाया है। पाकिस्तान को भी इसी तरह से मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अफगानिस्तान से मुतल्लिक खारजा पॉलिसी को अजय सर नो देखने की जरूरत है। वर्ल्ड कप से पहले एक आजादाना नरम खारजा पॉलिसी की जरूरत है। इससे ज्यादा लोगों को भारतीय वीजे मिल सकेंगे। लड़ाई से दुनिया की किसी कौम ने तरक्की नहीं की। चाइना से अच्छे ताल्लुकात के बावजूद हमारी तजारत कम हो रही है। ये काम सियासी हुकूमतों की बजाय निगरान हुकूमत ज्यादा बेहतर। नाज़रीन, खबर शामिल करें खेल के मैदान से तो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि टीम में कोई लड़ाई नहीं है। कोशिश है अच्छा खेलें और वर्ल्ड कप जीत कर लाएं। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से कबल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम ने कहा कि इवेंट के लिए भरपूर तैयारी है। कोशिश है कि अच्छा खेलें और वर्ल्ड कप जीत कर लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि एशिया कप में हारने वाले मैचेस से पहले टीम नंबर 1 पर थी। उन्हीं लड़कों की मेहनत ने हमारी टीम नंबर 1 पर पहुंचाई है। कोशिश करेंगे कि एशिया कप की गलतियां वर्ल्ड कप में ना दोहराए जाएं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का कहना था कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हमारे पास 7 से 8 दिन होंगे। हम पर कोई दबाव नहीं है, कंडीशन भी मुख्तलिफ नहीं। किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है ये फैसला मैच के रोज होता है। बाबर आजम ने कहा कि एशिया कप के आखिरी 2 मैचेस में अच्छा खेल पेश नहीं कर सके। कोई भी खिलाड़ी 100% फिट नहीं होता, हर दिन सीखता है। अलबत्ता हम प्लानिंग के तहत मैचेस खेलेंगे। उनका कहना था कि मैच से कबल टीम की तरतीब के लिए प्लानिंग करते हैं। क्रिकेट टीम ज्यादा खेले तो आगाही भी मिलती रहती है। गुज़िश्ता 2.5 माह से क्रिकेट खेल रहे हैं, खिलाड़ियों को आराम भी दिया है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।